ادب نما اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ ادب نما اسٹوڈیو اردو ادب کے فروغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے بنایا گیا ہے۔ طلباء اس چینل کا خاص مرکز ہیں۔ جامعات میں تیاری کر رہے حضرات کے لیے ماڈل پیپر، سوال و جواب کے علاوہ دیگر اہم موضوعات پر مشتمل تحقیقی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ UGC نیٹ کے مکمل سلیبس کا بھی احاطہ بتدریج کیا جائے گا۔ خصوصاً جنرل پیپر پر مشتمل لیکچرز بھی اپلوڈ کرنے کا سلسلہ جلد ہی شروع ہوگا۔ سوال نمبر 1، رسالہ دلگداز کے مدیر کون تھے؟ آپشن ہے ماسٹر رام چندر، سجاد حسین، عبدالحلیم شرر، ان میں سے کوئی نہیں۔ آپشن سی یعنی کہ عبدالحلیم شرر صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 2، مسدس حالی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن ہے شاہنامہ اسلام، عظمت اسلام، طلوع اسلام، مد و جزر اسلام۔ آپشن ڈی یعنی کہ مد و جزر اسلام صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 3، جس نظم میں مدحیہ یا ہجویہ اشعار ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن ہے شہر آشوب، واسوخت، قصیدہ، مرثیہ۔ اس میں آپشن سی یعنی کہ قصیدہ صحیح آپشن ہے۔ قصیدے میں دو اہم نام مرزا محمد رفیع سودا اور ابراہیم ذوق کا آتا ہے۔ قصیدہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا برائی بیان کی جائے۔ قصیدے کی صنف میں یعنی کہ حج کی جاتی ہے یا مدح کی جاتی ہے۔ شہر آشوب فتنہ، بگاڑ کے معنی میں آتا ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف جس میں کسی شہر کی پریشانی، گردش آسمانی اور زمانے کی ناقدری کا بیان ہو شہر آشوب کہلاتا ہے۔ مرثیے کے دو اہم نام انیس و دبیر۔ مرثیہ غم، نوحہ، آہو بکا، کربلا کا ذکر، یہ سب مرثیے کے خصائص ہیں۔ سوال نمبر 4، خوجی کس ناول کا مشہور کردار ہے؟ آپشن ہے خدائی فوجدار، فسان آزاد، فسان عجائب، فسان مبتلا۔ آپشن بی فسان آزاد صحیح آپشن ہے۔ فسان آزاد کے مصنف رتن ناتھ سرشار ہیں۔ فسان عجائب کے مصنف رجب علی بیگ سرور ہیں۔ سوال نمبر 5، مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشن ہیں 5، 3، 4، 6۔ اس میں آپشن اے یعنی کہ 5 صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 6، خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ آپشن ہے علی عباس حسینی، شوکت صدیقی، خواجہ احمد عباس، حیات اللہ انصاری۔ اس میں آپشن بی یعنی کہ شوکت صدیقی صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 7، ایک ادبی ڈائری کا مصنف کون ہے؟ آپشن ہے اختر انصاری، خواجہ حسن نظامی، قاضی عبدالغفار، خلیل الرحمن اعظمی۔ اس میں آپشن اے یعنی کہ اختر انصاری صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 8، انشا نے اپنی کس کتاب میں ہندوستانی زبان کو اولیت دیتے ہوئے فارسی عربی الفاظ سے گریز کیا؟ آپشن ہے دریائے لطافت، سلکے گوہر، لطائف السعادت، رانی کیتکی کی کہانی۔ اس میں آپشن ڈی یعنی کہ رانی کیتکی کی کہانی صحیح آپشن ہے۔ اس میں انشاءاللہ خواہ انشا نے ہندوستانی زبان کو اولیت دیتے ہوئے عربی فارسی کے ایک بھی جملے نہیں شامل کیے۔ اس کے علاوہ ذکر کردہ تمام کتابیں یعنی کہ دریائے لطافت، سلکے گوہر، لطائف السعادت، یہ تمام کی تمام کتابیں انشاءاللہ خواہ انشا کی ہیں۔ اس میں سلکے گوہر غیر منقوط ہے یعنی اس کتاب میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، فرہنگ آصفیہ کس کی مشہور لغت ہے؟ آپشن ہے سید احمد دہلوی، نور الحسن نیر، احسن مارہروی، مولوی عبدالحق۔ اس میں آپشن اے یعنی کہ سید احمد دہلوی صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 10، اردو برج بھاشا سے نکلی، یہ کس کتاب میں ملتا ہے یہ نظریہ؟ آپشن ہے حیات جاوید، آب حیات، باغ و بہار، سخندان فارس۔ اس میں آپشن بی یعنی کہ آب حیات صحیح آپشن ہے۔ یہ کتاب محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ محمد حسین آزاد ہی نے یہ نظریہ دیا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی۔
सवाल नंबर 11, ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ का नाम बताइए। ऑप्शन है अमानत लखनवी, वाजिद अली शाह, इंशाअल्लाह खां इंशा, आगा हश्र काश्मीरी। इसमें ऑप्शन ए यानी कि अमानत लखनवी सही ऑप्शन है। इससे पहले 2018 प्रीवियस पेपर बीए उर्दू ऑनर्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया पेश करते वक्त हमने इस बात को डिस्कस किया था कि ड्रामा इंद्र सभा से पहले भी कुछ लोग लिखते हैं कि वाजिद अली शाह ने भी 3 ड्रामे लिखे, लेकिन जो काबिल कबूल है पहला ड्रामा वो इंद्र सभा ही है। सवाल नंबर 12, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परीशां होना। ये किसका शेर है? ऑप्शन है रियाज खैराबादी, बिरज नारायण चकबस्त, सफ़ी लखनवी, अजीज लखनवी। इसमें ऑप्शन बी यानी कि बिरज नारायण चकबस्त सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 13, फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ रूप किस सिनफ़े शायरी से मुताल्लिक है? ऑप्शन है रुबाई, गजल, क़िता, नज़्म। इसमें ऑप्शन ए यानी कि रुबाई सही है। रुबाई रुबो से है जिसके मानी 4-4 के हैं। सवाल नंबर 14, मंटू के अफसाना नया कानून के मरकजी किरदार का नाम बताइए। ऑप्शन है हूरी, मंगू कोचवान, सलीम, कालाचंद। इसमें ऑप्शन बी मंगू कोचवान सही है। हूरी प्रेमचंद्र के मशहूर नावल गौदान का मरकजी किरदार है। सवाल नंबर 15, उदास नस्लें किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, अब्दुल्ला हुसैन, काजी अब्दुल गफ्फार। इसमें ऑप्शन सी अब्दुल्ला हुसैन सही है। इसके अलावा जिक्र किए गए नाम अहमियत के हामिल हैं, जिनमें राजेंद्र सिंह बेदी की अहम किताब एक चादर मैली सी बहुत मशहूर किताब है। कृष्णचंद्र की किताबों में कालू भंगी, एक गधे की सरगुज़िश्त, काजी अब्दुल गफ्फार की किताबों में लैला के खुतूत, मजनू की डायरी बहुत अहमियत के हामिल हैं। सवाल नंबर 16, शूर की रौ की तकनीक किस नावल में है? ऑप्शन है आग का दरिया, आबला पा, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, गौदान। इसमें ऑप्शन ए आग का दरिया सही है। इसकी मुसन्निफा कुरतुल ऐन हैदर हैं। इसके अलावा गौदान जो पहले जिक्र किया जा चुका है, इसके मुसन्निफ प्रेमचंद हैं। सवाल नंबर 17, मरसिया गालिब किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है अल्लामा शिबली, अल्ताफ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसमें ऑप्शन बी यानी कि हाली सही है। इसमें जिक्र किए गए तमाम नाम बहुत ही अहम हैं। शिबली की किताबों में शेरुल अजम, मुआजना अनीसो दबीर, हाली की और किताबें हैं जिनमें से मुकद्दमा शेर व शायरी बहुत अहम है, शायरी में एक संगे मील की हैसियत रखती है। यादगार गालिब, इसी तरह से और भी किताबें इनकी जिक्र की जा चुकी हैं। सर सैयद की किताबों में आसार सनादीद बहुत अहम है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताबों में आब हयात, नए रंगे ख्याल बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। सवाल नंबर 18, नौ तर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है अता हुसैन खां तहसीन, मजहर अली खां, मिर्जा काजिम अली, निहाल चंद लाहौरी। इसमें ऑप्शन ए यानी कि अता हुसैन खां तहसीन सही है। इसमें एक नाम निहाल चंद लाहौरी, इन्होंने फारसी की गुल बकाउली का उर्दू में मजहब इश्क के नाम से तर्जुमा किया था। सवाल नंबर 19, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी किसने लिखी है? ऑप्शन है अजीम बेग चुगतई, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी, मिर्जा फरतुल्ला बेग। ऑप्शन डी यानी कि मिर्जा फरतुल्ला बेग सही है। मिर्जा फरतुल्ला बेग नज़ीर अहमद के खास शागिर्दों में से यानी सबसे करीब शागिर्द थे। इनकी किताबों में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और मेरी दास्तान भी शामिल है। इन्होंने नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी लिख करके नज़ीर अहमद का पूरा खाका यानी उनकी जिंदगी को पिरो करके उतार दिया था। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी उर्दू का पहला खाका भी माना जाता है। सवाल नंबर 20, ईदगाह किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरम,
कुरतुल ऐन हैदर, अस्मत चुगतई। इसमें ऑप्शन ए यानी कि प्रेमचंद सही है। इसमें एक नाम अस्मत चुगतई जिसका जिक्र नहीं आया है, ये अफसाने में एक अहम नाम है। इनकी किताबों में लिहाफ, चौथी का जोड़ा बहुत अहम है। सवाल नंबर 21, जिस शहर में किसी तारीखी वाकया, किस्सा या कौल की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सनाते तजाद, तलमीह, तशबीह, ईहाम। इसमें ऑप्शन बी यानी कि तलमीह सही ऑप्शन है। अब हम इन तमाम को अशार के जरिए मिसालों से समझते हैं। सबसे पहले तलमीह की मिसाल, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। इसमें मूसा कलीमुल्लाह का जो अल्लाह से बात करने का वाकया है उसको जिक्र किया गया है, यानी कि यह तलमीह है। सनते तजाद, इसकी मिसाल, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हों जिंदगी दुश्वार हो जाए। इसमें आसानियां और दुश्वार ये दोनों एक दूसरे के जिद हैं, यानी कि इसमें सनाते तजाद है। तशबीह की मिसाल, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें शायर महबूब के जो होठ हैं उसको गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दे रहा है। ईहाम की मिसाल, ईहाम का जो शेर होता है वो जुमानी होता है, वहम में डालना जिसको कहते हैं। मिसाल सुने, जुल्फ लहरा के वो जिस दम सरे बाजार चला, हर तरफ शोर उठा मार चला मार चला। इसमें मार चला के दो मानी हैं, एक करीब का एक बाईद का। करीब का माना यह है मारना या जर्ब लगाना, और एक जो बाईद का माना है वो सांप के माने में है। सवाल नंबर 22, जिस नज्म में खुदा की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हम्द, नात, मनकबत। इसमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए यानी कि हम्द सही है। नात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, मदह की जाए। मनकबत किसी बड़ी हस्ती की मंजूम तारीफ की जाए उसे मनकबत कहते हैं। सवाल नंबर 23, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? ऑप्शन है तहजीब निस्वा, तालीम निस्वा, तहजीबुल अखलाक, तालीम अखलाक। इसमें ऑप्शन सी यानी कि तहजीबुल अखलाक सही है। सवाल नंबर 24, रुबाई में कुल कितने शेर होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 3, 8। इसमें ऑप्शन बी यानी कि 4 सही है। सवाल नंबर 25, दस्ते सबा किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन है अख्तरुल ईमान, शहरियार, फैज अहमद फैज, मीरा जी। इसमें ऑप्शन सी यानी कि फैज अहमद फैज सही है। इसके अलावा अख्तरुल ईमान की किताबों में यादें, मीरा जी की किताबों में गीत ही गीत और 3 रंग बहुत अहम है। सवाल नंबर 26, ऊदे हिंदी क्या है? ऑप्शन है खुतूत का मजमुआ, अफसाना, इंशाइया, दास्तान। ऑप्शन ए यानी कि खुतूत का मजमुआ सही है। ऊदे हिंदी मिर्जा गालिब की लिखी हुई किताब है। तौबतुन नसूह किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर अमन देहलवी, नज़ीर अहमद, शिबली नोमानी। इसमें ऑप्शन सी नज़ीर अहमद सही है। नज़ीर अहमद का पूरा नाम शम्सुल उलमा खान बहादुर डिप्टी मौलवी नज़ीर अहमद था। नावल में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी अहम किताबों में से मिरातुल उरूस इब्नुल वक्त भी है। मीर अमन देहलवी बागो बहार के मुसन्निफ, फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका ताल्लुक, जदीद उर्दू नस्र के बानियान में से हैं। शिबली नोमानी का जिक्र आ चुका है, आगे भी इंशाल्लाह इनके मुतालिक वीडियोस आपके सामने पेश की जाएंगी। कुछ अहम नाम हैं जिन पर मुकम्मल वीडियोस बनाना जरूरी है ताकि तैयारी करने में आसानी हो। सवाल नंबर 18, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है?
ऑप्शन है मीर तकी मीर, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, वली दकनी। ऑप्शन ए मीर तकी मीर सही ऑप्शन है, इनको खुदाए सुखन कहा जाता था। सवाल नंबर 29, खुद नविश्त सवाने उमरी कौन सी है? ऑप्शन है यादों की बारात, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद। इसमें ऑप्शन ए यादों की बारात सही है। इसके मुसन्निफ जोश मलिहाबादी हैं। इसके अलावा जिक्र की गई तमाम किताबें यानी कि हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, ये तमाम किताबें मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई किताबें हैं। सवाल नंबर 30, लफ्ज उर्दू बमाना लश्कर किस जुबान से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन है अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदी। इसमें ऑप्शन बी यानी कि तुर्की सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 31, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? ऑप्शन है 1936, 38, 32, 34। सही ऑप्शन 1936। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की सदारत में हुई थी। अगर इसके पस मंजर की बात करें तो तरक्की पसंद तहरीक या प्रोग्रेसिव मूवमेंट की पहली कॉन्फ्रेंस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुई थी, जिसमें सज्जाद ज़हीर, मलिक राज आनंद शरीक हुए थे। उसके बाद इन दोनों के साथ प्रमोद सेन गुप्ता और मोहम्मद दीन तासीर भी हुए और इन चारों लोगों ने मिल करके लंदन के एक रेस्टोरेंट में बैठकर इसका खाका तैयार किया और इसकी बुनियाद डाली। सवाल नंबर 32, शेरुल अजम किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है हाली, सर सैयद अहमद खां, शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद। इसमें ऑप्शन सी यानी कि शिबली नोमानी सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 33, नज्म रोटी नामा के शायर का नाम बताइए। ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, नजीर अकबर आबादी, अल्ताफ हुसैन हाली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी नजीर अकबर आबादी सही है। इसके अलावा नजीर अकबर आबादी की एक मशहूर नज्म आदमी नामा भी है। सवाल नंबर 34, मसरत से बसीरत तक किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, अख्तर औरैनवी। इसमें ऑप्शन सी यानी कि आल अहमद सुरूर सही है। सवाल नंबर 35, मसनवी किस जुबान का लफ्ज है? ऑप्शन है फारसी, तुर्की, अरबी, उर्दू। इसमें ऑप्शन सी यानी कि अरबी सही है। सवाल नंबर 36, आजाद की किताब गुबारे खातिर का मौजू क्या है? ऑप्शन है सवाने हयात, शेरी मजमुआ, तनकीद, खुतूत का मजमुआ। ऑप्शन डी खुतूत का मजमुआ सही है। सवाल नंबर 37, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक, मीर अमन दहलवी, वली दकनी, हामिद हसन कादरी। ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल हक सही है। सवाल नंबर 38, चेहरा और रज्ज किस सिन्फ़े सुखन के अज्जा हैं? ऑप्शन है कसीदा, मरसिया, मसनवी, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी मरसिया सही है। सवाल नंबर 39, असबाबे बगावत हिंद किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, हाली, आजाद, शिबली। इसमें ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां सही है। सर सैयद अहमद खां ने अंग्रेजों को यह किताब लिख करके ये बावर कराया कि हिंदुस्तानी रियाया और हिंदुस्तानी मुसलमान बगावत नहीं कर रहे हैं, बगावत के इल्जाम से बरी किया। सवाल नंबर 40, मुकद्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? ऑप्शन है सुलेमान नदवी, महमूद शीरानी, मसूद हुसैन खां, अब्दुल कादिर सरवरी। ऑप्शन सी मसूद हुसैन खां सही ऑप्शन है।
अदबनुमा स्टूडियो की ये पेशकश अगर आपको पसंद आए तो दूसरों तक पहुंचाएं, ख़ास तौर से उन तलबा तक जो जामियात और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस अदना तालिब इल्म की ये ज़ाती तहक़ीक़ है। वीडियो में किसी तरह की कोई कमी नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में उसकी निशानदही करते हुए मुफीद मशवरों से नवाजें। इंशाअल्लाह जल्द ही उस कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। 2018 प्रीवियस पेपर BA उर्दू ऑनर्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपलोड किया जा चुका है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हम जल्द ही कुछ अहम मौज़ूआत पर वीडियोस अपलोड करेंगे जो तलबा के हक़ में सूदमंद होंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।